اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج آپ کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کے تاریخ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا نام قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے، 43 مرتبہ، اور آپ کا تذکرہ 20 سورتوں میں آیا ہے۔ قرآن کی 20 سورہ ہے جس میں آپ کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ عمران، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، سورہ مومنین، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صفات، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حدید، سورہ حاقہ اور سورہ نوح۔ ان 20 صورتوں میں آپ کا تذکرہ، آپ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں مخصوصاً سورہ نوح اور سورہ ہود میں مفصل آپ کی گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کا سجر نسب یہ ہے کہ آپ جناب ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ آپ کا نام تاریخ نے عبد الغفار، عبد الملک یا عبد العلا تحریر کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے 500 سال تک گریہ کیا، اور اس گریہ کے سبب آپ کا نوح لقب پایا، لیکن اللہ نے بھی آپ کو اسی نام سے پکارا ہے اور اسی نام سے آپ کو چنا بھی ہے، آپ کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسا کہ سورہ صافات میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ آپ کا سجرہ نسب یوں ہے کہ نوح بن لمق بن متوسلق بن ادریس۔ روایت یہ ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، آپ کے اوپر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، آپ ایک گوشہ نشین زندگی گزار رہے تھے کہ ایک روز جناب جبریل تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ تبلیغ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو جناب نوح نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو جناب جبریل نے کہا اگر آپ کو طاقت عطا کر دی جائے، یہ کہنے کے بعد آواز دی کہ آپ کو اللہ نے مبعوث میں رسالت کیا ہے، آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے متوجہ کریں اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ جناب نوح نے یہ سنا تو وہ باہر نکل پڑے۔ ان کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں کچھ لوگ تھے جو بت کی پوجا کر رہے تھے۔ وہیں پر پہنچ کے جناب نوح علیہ السلام نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ پوری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، لیکن اسی بزم میں ایک مومنہ تھی جس کا نام تاریخ نے امورہ بنت زمران لکھا ہے۔ وہ جناب نوح پر فوراً ایمان لے آئی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے ایک حجرے میں قید کر دیا اور اس کا کھانا پانی سب بند کر دیا، یہاں تک کہ 1 سال تک اس حجرے میں وہ قید رہی۔ 1 سال کے بعد جب اس کے باپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ باحیات تھے اور پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ تو اس مومنہ نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی میں اللہ کو یاد کرتی تھی تو نوح علیہ السلام معجزے سے میرے پاس غذا لے کے آ جایا کرتے تھے اور وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے۔
اللہ نے جناب نوح کو یہ آواز دی کہ تم اس مومنہ سے عقد کرو. چنانچہ جناب نوح نے اس مومنہ سے عقد کیا اور اس کے بعد اللہ نے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام سام رکھا گیا. جناب سام کی ولادت طوفان نوح سے 78 سال قبل ہوئی تھی اور اس کے بعد رسول نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری شادیاں کی. ان شادیوں سے حام، یافس اور کنعان پیدا ہوئے. آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو آپ کی قوم آپ پہ پتھروں سے آپ پر پتھر برساتی تھی، پتھروں سے مارا کرتی تھی اور اتنا مارتی تھی کہ آپ پتھر میں ڈھک جاتے تھے تو قوم آپ کو مردہ سمجھ کے چلی جاتی تھی. پھر جناب جبریل آتے تھے، پتھر سے جناب نوح کو نکالتے تھے اور ان کے زخم پر اپنے پر کو مس کرتے تھے اور جب پر مس ہوتا تھا تو نوح کا زخم بہتر ہو جاتا تھا اور وہ پھر تبلیغ کے لیے نکل پڑتے تھے. یہاں ایک مجلسی نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام، لیکن نوح اسے کہتے ہیں جسے فرشتہ شفا دے اور حسین اس کو کہتے ہیں جو فرشتوں کو شفا دے. تو عزیزان گرامی، جناب نوح تبلیغ کرتے رہے. اس میں اختلاف ہے کہ کس عمر میں جناب نوح کو مبعوث برسالت کیا گیا ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مبعوث برسالت جب ہوئے اس وقت آپ کی عمر 850 سال کی تھی. پھر آپ نے 950 سال کی تبلیغ کی. اس کے بعد 200 سال تک کشتی بنائی اور اس کے بعد 500 سال تک زندہ رہے. یعنی پوری عمر جناب نوح علیہ السلام کی 2500 سال امام نے بتائی ہے. جناب نوح جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب انہوں نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے آواز لگائی تو صرف 72 یا 80 افراد تھے. تو یہاں پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ نوح علیہ السلام آپ کی عظمت پر لاکھوں سلام، لیکن آپ کی 950 سالہ تبلیغ کا انجام 72 افراد پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اور میرا نبی وہ نبی ہے جس نے صرف 23 سال تک تبلیغ کی تو پوری ملت مسلمان کو نجات عطا کر دیا. یعنی نوح 950 سال تبلیغ کرے تو 75 یا 80 افراد کو مسلمان بنائے اور محمد 23 سال کی تبلیغ کرے تو پوری کائنات کو مسلمان بنا دے. یہی فرق ہے جناب نوح میں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. جناب نوح علیہ السلام روایت یہ کہتی ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہے، قوم آپ پر دشنام دیتی رہی، آپ پر پتھر برساتی رہی، آپ کو دیوانہ کہتی رہی، آپ کو پاگل کہتی رہی. آخر میں جناب نوح نے اللہ سے التجا کری، پروردگار یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اس پر عذاب نازل کر. حکم پروردگار ہوا، نوح میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ طوفان آنے والا ہے. جناب نوح نے جا کے اعلان کیا. پھر حکم پروردگار ہوا، نوح کشتی بناؤ. اور کشتی بنانے کے لیے نوح کو حکم ہوا کہ تم خرمے کو کاشت کرو، وہ خرما جب درخت بن جائے تو اس سے تختی بناؤ. چنانچہ جناب نوح نے خرمے کی کاشت کی. 40 سال کے بعد وہ درخت لائق ہوا کہ اس کا تختہ بنایا جا سکے. لیکن اللہ نے کہا نوح یہ درخت بہتر نہیں ہے، پھر دوبارہ کاشت کرو. اس طرح 3 مرتبہ پروردگار نے کاشت کرایا. امام سے جب پوچھا گیا کہ پروردگار نے 3 مرتبہ ایسا کیوں کیا تو امام نے کہا اللہ قوم نوح کو موقع دے رہا تھا کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی راہ راست پہ آ جاؤ. لیکن جب قوم راہ راست پہ نہ آئی تو 3 مرتبہ حکم ہوا کہ نوح کشتی تیار کرو. جناب نوح کشتی تیار کرنے لگے. اللہ نے کہا میری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. روایت کہتی ہے کہ 1,24,000 تختے حکم ہوا کہ بناؤ اور اس سے
कश्ती बनाओ। जनाब नूह ने कहा परवरदिगार इतनी बड़ी कश्ती जिसमें 1,24,000 तख्ते लगाए जाएं तन्हा मुमकिन नहीं है, हमें मदद की दरकार है। तो अल्लाह ने कहा तुम ऐलान करो और ऐलान करो मजदूरों को कि मजदूर आए तुम्हारी मदद करें, और जो भी मदद करेगा उसकी मजदूरी परवरदिगार ये देगा कि तख्तों से जो बुरादा गिरेंगे उस बुरादा को सोने और चांदी में तब्दील कर देगा। चुनांचे ये सुन के मजदूर आए और मजदूरों के साथ मिलकर जनाब नूह ने कश्ती की तामीर शुरू की। रिवायत कहती है कि 200 साल कश्ती बनाने में सर्फ हुआ। इसमें 1,24,000 तख्ते लगे और 1,29,000 कीलें इस्तेमाल की गई। रिवायत कहती है कि जब कश्ती तैयार हो गई तो उसमें अभी भी 5 तख्तियों की जरूरत थी। तो जनाब नूह 5 तख्तियों को लेके आए और कहा, नूह के पास आने के बाद जिब्रील ने कहा इन तख्तियों को इसमें नस्ब कर दो। तो जनाब नूह ने देखा कश्तियों पे कुछ नाम तहरीर है, पूछा ये कौन से नाम है? कहा इसी नाम की बदौलत तुम्हारी कश्ती निजात पाएगी। उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद, एक तख्ती पे अली, एक पे फातिमा, एक पे हसन, एक पे हुसैन। जब वो तख्ती लग गई तो फिर कश्ती मुकम्मल हो गई। और इसके लिए एक वाक़या नकल किया जाता है कि जब जंग दो में जहानी हो रहा था तो जर्मन की फौज जा रही थी रूस की तरफ, तो जमीन से उसे कुछ रोशनी नजर आई। खुदाई करने के बाद एक तख्ती मिली, उस तख्ती को लेके लोग आए, म्यूजियम में रखा गया, उसका रिसर्च हुआ। रिसर्च करने के बाद साइंसदानों ने ये ऐलान किया कि ये तख्ती तूफान नूह के वक्त की है और कश्ती नूह का एक टुकड़ा है जिस पे सीरियानी जुबान पे कुछ लिखा हुआ है। लोगों ने रिसर्च करके बताया उस तख्ती पर लिखा हुआ था या मोहम्मदो, या अलियो, या फातिमा, या हसनो, या हुसैन अल मदद। तो जनाब नूह की कश्ती पंजतन पाक के वसीले से निजात पा गई। तो अब कहने दीजिए जब नूह की कश्ती बगैर पंजतन पाक के निजात नहीं पा सकती तो हमारी जिंदगी की कश्ती बगैर इनसे मुस्तकसिल हुए कैसे निजात पा सकती? रिवायत में है कि जब कश्ती तैयार हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातब किया कि अब कश्ती तैयार है, तूफान कभी भी आ सकता है। एक रोज जनाब नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा तनूर में कूफे में रोटी बना रही थी कि तनूर से पानी का चश्मा जारी हुआ। दौड़ी हुई जनाब नूह के करीब आई। नूह ने ऐलान किया लोगों तूफान आ गया, अब सवार हो जाओ कश्ती पे। रवायत कहती है कि जनाब नूह अपने बेटों के साथ कश्ती पे सवार हो गए और जनाब नूह के साथ जो लोग सवार हुए उनकी तादाद 72 या 80 थी। अज़ीज़ान गिरामी 72 या 80 इंसान उस कश्ती पर सवार हुए। एक रिवायत पाई जाती है कि इस कश्ती पर 2 लोग ऐसे थे जो सवार ना हो सके, एक नूह की बीवी थी, एक नूह का बेटा था। और तारीख में लिखा गया है कि कश्ती पर 2 लोग सवार नहीं हो पाए, एक तो काफिर और एक वलदुज़्ज़ना। यानी कश्ती नूह पे 2 किस्म के लोग सवार नहीं हो पाए, जो वलदुज़्ज़ना थे वो और जो काफिर थे। तो अजीजों अब कहने दीजिए कि कश्ती नूह पर जब वलदुज़्ज़ना और काफिर सवार नहीं हो सकते तो एक रिवायत और नजर से गुजरती है कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है, जो इस पर सवार हो गया वो कामयाब हो गया। अब इस कश्ती पर 2 किस्म के लोग सवार नहीं हो सकते, जो काफिर हैं वो सवार नहीं हो सकते, जो वलदुज़्ज़ना है वो सवार नहीं हो सकते। तो अहले बैत का जो मुनकिर हो या तो वो काफिर है या वलदुज़्ज़ना है। इसलिए रिवायत में है कि जब पैगंबर इस्लाम के दौर में साफ फरमाते हैं कि हम चाहते थे कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करें तो हम अली का जिक्र कर देते थे। अली के जिक्र से पता चल जाता था कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। और रसूल की एक हदीस है कि अली को दोस्त नहीं रख सकता मगर वो जिसकी मां का दामन पाक हो, और अली से दुश्मनी वही रखेगा जो वलदुज़्ज़ना हो। अज़ीज़ान गिरामी जनाब नूह की कश्ती
सवारी को लेके चली। रिवायत कहती है कि कश्ती 3 तबके की थी। नूह ने पहले तबके पर जानवरों को रखा, बीच वाले तबके पर खाने का सामान रखा और आखिरी तबके पर इंसानों को सवार किया। ये कश्ती चलने के बाद सबसे पहले इसका जो पड़ाव हुआ वो मक्का था। मक्के में जाके इसने खाने काबा का तवाफ किया। उसके बाद जनाब नूह ने ताबूत आदम को कश्ती पर रखा और फिर ये कश्ती आगे बढ़ गई। रिवायत कहती है 2 ऐसे मुकाम आए जहां कश्ती को हचकोले लगे और अनकरीब था कि कश्ती डूब जाए। एक करबला की जमीन थी, एक शाम की जमीन थी। जब बाद में नूह ने पूछा था वो 2 जगह कौन सी थी जहां मेरी कश्ती हलकोले खा रही थी, तो जिब्रील ने बताया था एक करबला था, करबला की सरजमीन थी जहां तेरे आखिरी नबी का नवासा हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहेगा, 3 दिन की प्यास में शहीद किया जाएगा। तो जनाब नूह ने इमाम हुसैन पर गिरिया किया था। अज़ीज़ान गिरामी, कश्ती चली। रास्ते में जनाब नूह ने अपने बेटे को देखा जो पहाड़ की तरफ जा रहा था। आवाज़ दी, आओ कश्ती पे सवार हो जाओ। बेटे ने कहा मुझे कश्ती पर सवार होने की जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा और पहाड़ मुझे बचा लेगा। लेकिन जब पहाड़ पानी के अंदर डूबने लगा तो एक मतबा जनाब नूह ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार ये मेरा बेटा है और तुमने वादा किया है कि तुम्हारे खानदान को मैं बचा लूंगा। तो आवाज़ कुदरत आई, या नूह इन्नहु लैसा मिन्नी अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। ए नूह, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहल से नहीं है, इसलिए कि इसका अमल गैर सालिह है। ये कह के खुदा ने बता दिया कि अगर इंसान का अमल गैर साले हो तो बेटा हो के भी वो बेटे के सिर्फ सबसे निकाल दिया जाता है। तब कहने दीजिए अगर हम उम्मत मोहम्मदी हैं और हमारा अमल सालेह न हो, बेहतर न हो, तो क्या खुदा को यह हक नहीं है कि हमें उम्मत मोहम्मदी से निकाल दे? सिर्फ उम्मत मोहम्मदी में रहना काफी नहीं है जब तक कि हमारे में अमल साले न हो। जब हम अमल साले बजा लाएंगे तो उम्मत मोहम्मदी में हमारा शुमार होगा। चुनांचे कश्ती नूह चलती रही और उसने जाके कोहे जूदी पर करार पाया, ठहरी। रिवायत कहती है कि जब जनाब नूह कश्ती से उतरे और उतरने के बाद उन्होंने आलम का दौरा किया कि देखूं कौन बचा कौन मर गया। तो रिवायत ये बताती है कि नूह ने उसके बाद 500 साल तक अपनी कौम पे गिरिया किया। जब नूह ने देखा कि उनका कौम का कोई फर्द जिंदा नहीं है। रिवायत में मिलता है कि तूफान नूह से वो लोग बचे जो कश्ती नूह में सवार थे और एक और इंसान बचा जिसको तारीख ने औज बिन अनक कहा है। औज बिन अनक, रवायत कहती है कि औज बिन अनक जो थे वो जनाब आदम के नवासे थे। जनाब आदम की एक बेटी थी जिनका नाम अनक था, उनसे ये पैदा हुए थे और ये बहुत ही तवील कामत थे। कुछ लोगों ने इनकार किया है लेकिन अमूमन तारीख में इनका तस्करा पाया जाता है कि जब तूफान नूह आया था जो पहाड़ों के ऊपर भी पानी बह रहा था, यानी तारीख बताती है कि 40 मीटर तक पानी पहाड़ के ऊपर बह रहा था। इतना पानी होने के बावजूद भी रिवायत कहती है कि वो औज बिन अनक के घुटनों तक ही आ पाया था। और बिन अनक समंदर की गहराइयों से मछली निकाल लिया करते थे और सूरज से भून के खा लिया करते थे। इन्होंने भी चाहा था कि नूह की कश्ती पर सवार हो, लेकिन नूह ने कहा कि आप इतने कद कामत वाले हैं, इस पर सवार नहीं हो सकते। इनका वाक़या इंशाअल्लाह जनाब मूसा के दौर में आप पढ़ेंगे। इनको खुदा ने 3600 यानी 3600 साल की उम्र दी। ये जनाब आदम से लेके जनाब मूसा के दौर तक रहे और जनाब मूसा के दौर में इन्होंने मुखालफत की और जनाब मूसा के मुकाबले में आ गए तो जनाब मूसा ने इन्हें मारा। और रिवायत में आया है कि 40 गज का असा था, मूसा 40 गज उछले, उसके बाद जब असा मारा तो उसके वो
एड़ी पर आके लगा और उससे वो इंतकाल कर गए। ये इंशाअल्लाह जनाब मूसा के तारीख जब हम आपके सामने बयान करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इनका वाक़या आपके सामने बयान किया जाए। रिवायत में इनकी लंबाई के मुतल्लिक़ है कि 2,33,333 हाथ, और फरमान साहब अपनी कुरान मजीद में तहरीर फरमाते हैं कि इसका कद 3,33,023 गज था। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो इंसान कितना बड़ा था। तो तूफान नूह में इनके अलावा कोई भी नहीं बच सका। जनाब नूह की तारीख कोशिश करूंगा कि मैं आज मुकम्मल कर दूं। जनाब नूह के मोजज़ात में 3 मोजज़े हैं जो जनाब नूह से मंसूब हैं। पहला ये कि इन्होंने वादा किया था कि तूफान आएगा, तूफान आ गया। दूसरा मोजज़ा ये है कि जब लोग भूख से तड़पने लगे तो जनाब नूह जब रेत उठा के दिया करते थे तो रेत गंदुम में तब्दील हो जाया करता था। तीसरा मौजूदा ये था कि जब किसी दरख्त का बीज जमीन पे बोया करते थे तो बोते ही वो दरख्त की शक्ल में हो जाता था और फौरन उसमें फल आ जाते थे। ये जनाब नूह के 3 मौजूदे हमने तारीख में देखे। नूह की औलाद, जैसा कि हमने कहा कि नूह की पहली बीवी से एक फर्जंद हुआ जिसका नाम साम रखा गया। दूसरी बीवियों से जनाब हाम और जनाब याफिस पैदा हुए। जनाब साम के 9 बेटे हुए, जनाब हाम के 9 बेटे हुए, जनाब याफिस के 11 बेटे हुए। जब जनाब आदम इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया और हजरत नूह ने 3 हिस्सों में जमीन को तकसीम किया। शाम, इराक, अरब, अजम, फारस शाम को दिया। मिस्र, सूडान, हबस, सिंध, हिंद हाम को दिया और चीन, तिब्बत और सारी जमीन मशरिक याफिस को अता की। तूफान नूह के बाद जनाब नूह 500 साल तक बाहयात रहे। जनाब जिब्रील से हमेशा अपने कौम के मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे और गिरिया करते रहे, यहाँ तक कि वक्त मर्ग करीब आया, मलकुल मौत करीब आए और नूह से कहा कि हम आपकी रूह कब्ज करना चाहते हैं। तो जनाब नूह ने कहा क्या इतनी इजाज़त है कि मैं अपनी औलादों से मिल लूँ? जनाब मलकुल मौत ने कहा कि ये मुमकिन नहीं। तो कहा अच्छा इतनी इजाज़त दे दो कि मैं धूप से साए में चला जाऊँ। जनाब नूह को यह मोहलत दी गई। उसके बाद मलकुल मौत ने जनाब नूह से एक सवाल किया। सवाल ये था कि आपने इतनी उम्र गुजारी, मुद्दत हयात आपकी निगाह में क्या है? यानी आपने इतनी मुद्दत गुजारी है, ये हयात आपकी नज़र में क्या है? तो जनाब नूह ने जवाब दिया कि मेरी सारी जिंदगी बस इतनी थी जैसे धूप से मैं साए में आ गया। यानी 950 साल की जिंदगी नहीं, 2500 साल की जिंदगी को जनाब नूह कहते हैं ये हमारे लिए बस ऐसा ही है कि जैसे मैं धूप से साए में आ गया। और एक रिवायत में ये है कि एक रोज जनाब नूह अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उन्होंने 4 आदमियों को एक कब्र खोदते देखा। करीब पहुंचे, आवाज़ दी क्या मेरी कोई मदद दरकार है? उन लोगों ने कहा असल में मैं जिनकी कब्र खोद रहे हैं वो बिल्कुल आप जैसे हैं, आपका ही कद है। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप कब्र में लेट जाएं कि हमें अंदाजा हो जाए कि कब्र बराबर खुदी है या नहीं। जनाब नूह कब्र में जाके लेट गए, बस लेटना था कि मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। ये वही जमीन थी जहां रिवायत कहती है कि आज भी कब्र नूह बाकी है और वो नजफ अशरफ है जो अमीरुल मोमिन हजरत अली इब्न अबी तालिब के कब्र के करीब है। इस तरह जनाब नूह अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजारते रहे और जनाब नूह का जब वक्त वफात करीब आया तो जनाब नूह ने अपना जानशीन शाम को बनाया। शाम का जब वक्त वफात आया तो उन्होंने अपना जानशीन अरफाखद को बनाया। अरफाखद जो है जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपना जानशीन सालिक को बनाया और सालिक जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपना जानशीन जनाब आमिर को बनाया। और यही आमिर है वो है जिसे जनाब हूद अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाया करता है। सामीन, नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैंने आज हज़रत नूह के वाक़े को मुफस्सलन
बयान करने की कोशिश की। आए हम खुदा के बारगाह में ये दुआ करें कि परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल कर फरमाए, हमारी रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी इन ज़हमात को कबूल फरमाए। और नाज़रीन, आखिर में चंद लोगों ने इल्तमा से दुआ कहा है जो इस बीमारी नागहानी में मुब्तला हैं, जैसे मौलाना शबीब साहब जो मुजफ्फरपुर में इमाम जुमा हैं, एक हमारे अजीज़ हैं जो कनाडा में हैं जिनका नाम नवेद है, और एक मेरे ख़ास दोस्तों में है जो यहीं जहां मैं रहता हूं वहां रहते हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप उनकी सेहत कामिला के लिए दुआ करें कि खुदा उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।